آج جمعے کا دن ہے 21 اگست 2026 میں خوش آمدید، اور آج کا ویکلی ہوراسکوپ بہت ہی اہم ہونے والا ہے، کیونکہ آج کا ویکلی ہوراسکوپ 12 ربیع الاول اور چاند گرہن کے اعمال پر مبنی ہے۔ چاند گرہن کے اثرات تمام برج پر کیسے ہوں گے، اور 12 ربیع الاول کی رحمت کے حوالے سے چند اعمال اس ویکلی ہوراسکوپ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جیسے کہ میں عرض کر چکا، یہ ویکلی ہوراسکوپ 21 اگست 2026 سے لے کے 28 اگست 2026 پر مبنی ہے۔ یہ پورا ہفتہ مچھلی کھانا ایک مرتبہ بہت مبارک ہے، پانی زیادہ پینا بہت مبارک ہے، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ کوشش کر کے ملتانی مٹی اپنے ہاتھوں اور پیروں میں دوپہر کے وقت کسی بھی ایک دن ضرور لگا دیجیے گا، پھر جیسے ہی ہاتھ پاؤں خشک ہو جائیں تو گلاب کے پانی سے اس کو دھو لیجیے گا۔ پچھلے سال کی پوری نحست ختم ہو جائے گی۔ ان ایام میں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے گھر میں قرآن خوانی رکھتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ سفید لباس زیادہ پہنتے ہیں، سبز امام زامن اپنے سیدھے بازو پہ پہنتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ جیسے کہ 14 ربیع الاول کو جو گرہن لگے گا اس کے اثرات تمام بروج کو چڑچڑا بنائیں گے، یعنی چڑچڑاپن زیادہ حاوی ہوگا، غصہ زیادہ آئے گا، ایموشنل کیفیت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے برج کینسر والے، برج لیو والے، اس کے علاوہ دوسرے آبی اور آتشی برج جتنے ہو سکیں زبان کو میٹھا رکھیں، جلد بازی سے بچیں اور احساسات میں فیصلے یا گفتگو نہ کریں۔ لاجک کے ساتھ بات کریں اور سن سن کے جواب دیں۔ تمام نقصانات سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ ان ایام میں مٹی پہ ہاتھ رکھ کے صبح کے آغاز میں اگر آپ نصر من اللہ و فتح قریب پڑھتے ہیں اور پھر وہ مٹی امام ضامن کی نیت سے اپنے ساتھ رکھتے ہیں، یعنی کوئی بھی پاک مٹی ہو جیسے خاک شفا ہے اس کو ہاتھ میں لیں اور پھر نصر من اللہ و فتح قریب کو 108 مرتبہ پڑھیں اور اس کو امام ضامن کی نیت سے اپنے پاکٹ پرس میں رکھ کے جہاں بھی جائیں گے انشاءاللہ توجہ کا مرکز اور کامیابی کے حوالے سے آسانی پائیں گے۔ صبح کے آغاز میں ایپل کھانا، شام کے وقت لیمو پانی پینا یا پپیتا کھانا بہت مبارک ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ مچھلی کھانا اور مچھلی کا صدقہ نکالنا بھی بہت مبارک ہے، جیسے کہ ان ایام کا صدقہ سفید چیز کا بھی ہے اور مچھلی کا بھی ہے۔ ان ایام کا خاص اسم اعظم یا رحمان و یا رحیم 27 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جیسے کہ چاند گرہن جو ہے وہ 28 تاریخ کو ہوگا، ہمارے یہاں جزوی چاند گرہن ہوگا تو صبح کے وقت طلوع ہوگا، تو 28 اگست یعنی جمعے کے دن صبح 6 بجے سے لے کے صبح 12 بجے تک اگر احتیاط کریں گے تو بہت مبارک ہے۔ حاملہ عورتیں ہاتھ سے آگ نہیں جلاتی، کینچی چھری نہیں لیتی تو بہت مبارک ہے۔ اور آتشی اور آبی برج یعنی ایریز، لیو، سیجیٹیریس، اسکارپین، کینسر اور پائسس اگر گھر میں رہتے ہیں یا اگر باہر جاتے ہیں تو سر ڈھانپ کے جاتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ ان ایام میں تمام بروج والے اگر اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ جتنا ہو سکے کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو 28 اگست سے پہلے آپ ابتدا کریں، انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ جیسے کہ میں عرض کر چکا، ان ایام کا خاص اسم اعظم یا رحمان و یا رحیم ہے اور خاص صدقہ سفید چیز کا یعنی آٹے کا اور مچھلی کا ہے۔ برج ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ بڑا اہم ہونے والا ہے۔ آپ کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں، کاموں میں آسانیوں کے راستے ہموار ہونے، اس لیے سفید لباس پہننا، ہاتھ میں چاندی پہننا، حضرت میکائیل اور جبرائیل علیہ السلام کا دیا مغرب کے وقت جلانا بہت مبارک ہے۔ تلخی سے بچتے ہیں، غصے سے بچتے ہیں، زبان کو میٹھا رکھتے ہیں تو دنیا قدموں میں آئے گی۔ مسلوں میں مٹھاس نہیں کھاتے اور پھل سبزیاں کھاتے ہیں اور ریگولرلی واک پہ جاتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ تلخی غصے میں گفتگو کرنا ہے، کسی رشتے کو توڑنا، اس میں جلد بازی نہ کریں کیونکہ کوئی رشتہ ٹوٹتا ہوا ذائچے میں دکھ رہا ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا، مچھلی کا، اس میں آدم پتھر میں دے سکتے ہیں۔ آج، کل اور پرسوں مہربان اسٹونز کی طرف سے ایک شاندار آفر دی جا رہی ہے۔ اگر آپ مہربان اسٹونز سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ چاند گرہن کا یہ لوہے کمر جو انسان کے احساسات کو قابو کرتا ہے اور محبت کے راستے ہموار کرتا ہے، گفٹ دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ لوہے شمس جو ہاتھ میں دولت کے راستے ہموار کرتا ہے، گفٹ دیا جائے گا۔ اور نظر، حسد، جادو، تعویذات سے بچنے والا سرما جس کا ٹیکا جو انسان اپنے کان کے پیچھے لگا کے کہیں بھی جائے گا تو تمام نیگیٹو انرجی سے محفوظ رہے گا۔ تو ابھی فون اٹھائیں، مہربان اسٹونز کے نمبر پہ کال کریں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ تینوں تبرکات گفٹ حاصل کریں۔ مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ meherbanli.com وزٹ کریں۔ وہ تورس والوں کے لیے یہ ایام بڑے اہم ہونے والے ہیں۔ ڈارک کلر ہفتے کم پہنیے گا، سفید لباس پہنیے گا، ملتانی مٹی اپنے پاؤں اور ہاتھوں میں ضرور لگائیے گا، ان سے جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے، تلخی ہے، آپ کے وجود میں چڑچڑاپن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ واک پہ ریگولرلی جانا، پھل صبح کے وقت ایپل کھانا بہت مبارک ہے۔ گلاب کا عطر صبح کے آغاز میں لگانا بہت مبارک ہے۔ کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایام آپ کو فائدہ دلائے گا، بس جلد بازی میں ایموشنل فیصلے نہ کریں۔ ان کا بھی ایام کا سفید چیز کا، مچھلی کا، اور اس میں آدم پتھر کی وجہ سکتے ہیں۔
برج जेमिनी वालों की ज़िंदगी में राज और इल्म दिख रहा है। माशाल्लाह कामों में आसानियों के रास्ते हमवार होंगे। ये अय्याम आपकी ज़िंदगी के बहुत मुबारक होने वाले हैं। कोशिश करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद कसरत से पढ़िएगा। रेगुलरली वॉक पे जाइएगा। पानी ज़्यादा पिएंगे तो बेहतर है। फल सब्जियाँ ज़्यादा खाएंगे तो बेहतर है। मछली का सदका निकालते हैं और एक मरतबा अगर मछली इस पूरे हफ्ते में खाते हैं तो बहुत मुबारक है। तली हुई मछली या मछली का सालन से जहानत में इजाफा होगा, हाजिर दिमागी साथ होगी। सुबह के आगाज़ में आप ज़मज़म से अपनी पेशानी पे अल्लाह का नाम लिखते हैं तो जहाँ जहाँ जाएंगे तवज्जो का मरकज़ बनेंगे। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का, मछली का, और उसमें ज़्यादा पत्थर दे सकते हैं। बुर्ज कैंसर वालों के लिए ये अय्याम थोड़े से इमोशनल होंगे। ज़्यादा तन्हाई महसूस होगी, अकेलापन महसूस होगा। इल्मी राज तो मिलेगा लेकिन किसी इमोशनल गलती में मुब्तला होते हुए दिख रहे हैं। पुराने साथी मंजर-ए-आम पे आते हैं, दोस्त बना लें, हम राज ना बनाएं, क्योंकि अभी किसी को राज बताना किसी बड़ी परेशानी या नुकसान की तरफ आपको धकेल देगा। इन अय्याम में अगर मिर्च मसाली चटपटी चीज़ें कम खाएंगे तो बेहतर है। रेगुलरली वॉक पे जाएंगे, शाम को लीमू पानी पिएंगे या पपीता खाएंगे तो बहुत मुबारक है। सफ़ेद लिबास पहनना, हाथ में चांदी पहनना, हर जिब्राइल और मीकाईल अलैहिस्सलाम का मगरिब के वक्त दिया जलाना बहुत मुबारक है। काम को शुरू कर सकते हैं, रिश्तों को तोड़ने में तलखी या जल्दबाजी से गुफ्तगू ना करें। इन अय्याम में आपको कोई दौलत भी मिल सकती है जिसका ताल्लुक आपकी जहानत, हाजिर दिमागी और मीठी ज़बान से है। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का और मछली का, और उसमें पत्थर दे सकते हैं। 2026 सूरज का साल है और सूरज का खास पत्थर पुखराज है। ये राज करवाने का पत्थर है। वो लोग जिनका नसीब उलझा हुआ है, अल्लाह के फजल से इस साल ये पुखराज उनको राज करवाएगा। 2026 में जो इंसान अपनी पहली उंगली में पुखराज पत्थर पहनेगा और जैसे ही सूरज की रोशनी उसके हाथ में पहने हुए पुखराज पत्थर को लगेगी तो उसकी इज्जत में इजाफा होगा, उसकी शोहरत में इजाफा होगा। आज, कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से कोई भी पत्थर लेंगे तो उसके साथ ये 3 तबरुकात गिफ्ट दिए जाएंगे। पहला, लोहे कमर, जो इंसान के लिए मोहब्बत के रास्ते हमवार करता है, जिंदगी में सुकून लाता है और जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको मुतवज्जह करवाता है, गिफ्ट दिया जाएगा। साथ साथ लोहे शम्स, जो दौलत के हवाले से इंसान को मजबूत बनाता है, कामयाबी के रास्ते हमवार करता है, गिफ्ट दिया जाएगा। और उसके साथ नजर हसद से बचने वाला सुरमा, जिसका टीका इंसान अपने जिस्म पे लगा के कहीं भी जाएगा तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसको छू नहीं पाएगी, गिफ्ट दिया जाएगा। तो अभी फोन उठाएं, मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करें और किसी भी पत्थर के साथ ये 3 तबरुकात गिफ्ट हासिल करें। वो लियो वालों के लिए ये अय्याम राज योग के अय्याम है। सुबह के आगाज में सब्ज एप्पल खाना, पानी ज्यादा पीना बहुत मुबारक है। सफ़ेद लिबास पहनना बहुत मुबारक है। घर के पहले दरवाजे की चाबी अपने पॉकेट में रख के दिन का आगाज करेंगे तो ये पूरा हफ्ता जहाँ जहाँ जाएंगे तवज्जो का मरकज बनेंगे। अगर पाँव को धोते, रात को पाँव की मसाज करके सोते हैं तो बहुत मुबारक है। इन अय्याम आब ज़मज़म से सुबह के आगाज में अल्लाह का नाम अपनी पेशानी पर लिखना बहुत मुबारक है। जितना हो सके गुस्से और चिड़चिड़पन से दूर हो जाएं, क्योंकि आपकी मीठी ज़बान, आपकी हाजिर दिमागी आपको इल्म भी देगी, मारिफत भी देगी और कामों में आसानियों का रास्ता भी बिछाएगी। इनका भी नियाम का सफ़ेद चीज़ का, मछली का, और इसमें आदम पत्थर की दे सकते हैं। भाई विर्गो वालों की ज़िंदगी में ये बड़ा हफ्ता मुबारक है। आपकी कोई खुशी पूरी होगी, आपकी कोई मंजिल आसान होगी, आपके लिए रास्ते हमवार होंगे। इसलिए इस हफ्ते पानी ज़्यादा पीजिएगा, रात को नीम गर्म दूध पीते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, रोज़ वॉक पे जाते हैं तो बहुत मुबारक है। याद रहे, तली हुई चिपचिपी चीज़ें हफ्ते कम खाएं और बिछड़े हुए साथी मंजर-ए-आम पे आते हैं तो दोस्त बना लें लेकिन हमराज ना बनाएं। अगर सुबह के आगाज़ में कान के पीछे काला टीका लगाते हैं तो बहुत मुबारक है। किसी चीज़ को ख़रीदना इन अय्याम में बहुत मुबारक है, लेकिन किसी चीज़ को बेचने में, किसी रिश्ते को तोड़ने में जल्दबाजी ना करें। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का, मछली का, इसमें पत्थर को दे सकते हैं। लिब्रा वालों के लिए ये अय्याम तहकीक के अय्याम है। डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा देखते हैं, किताबों को ज़्यादा पढ़ते हैं, हाजिर दिमागी को कायम करते हैं, रोज़ रात को पाँव धो के सोते हैं, सफ़ेद बिस्तर पे सोते हैं, कुछ देर नंगे पाँव ज़मीन पे चलते हैं, कुछ देर पाँव अपने पानी में डाल देते हैं तो बहुत मुबारक है। क्योंकि मुश्तरी का योग आपको लगा है। बिजनेस करना, किसी काम को शुरू करना, मीठी ज़बान से गुफ्तगू करना आपको दौलत, इल्म और मोहब्बत अता करवाएगा। बस गुस्से और चिड़चिड़पन से दूर रहिएगा। इनका भी नियाम का सफ़ेद चीज़ का, मछली का, और इसमें आदम पत्थर की दे सकते हैं। वो स्कॉर्पियन के लिए ये अय्याम तहकीक के अय्याम भी हैं, इल्म के अय्याम भी हैं और खूबसूरती के अय्याम भी हैं। आपकी आंखों में नूर बरसेगा, आपके चेहरे पे नूर वाज़े होगा। काम को शुरू करना, हुनर को सीखना, इल्म के लिए जुस्तजू करना बड़ा फ़ायदा दिलाएगा। डार्क कलर सबसे कम पहनेंगे तो बेहतर है। सफ़ेद लिबास पहनते हैं, सब इमाम में अपने साथ रखते हैं, करबला की मिट्टी या कोई भी पाक मुकद्दस मिट्टी अपने साथ रखते हैं तो जहाँ जहाँ जाएंगे तवज्जो का मरकज़ भी बनेंगे और लोग आपकी तरफ मुतवज्जा भी होंगे और आपकी बात को तस्लीम भी करेंगे, गौर से सुनेंगे भी, समझेंगे भी। इन अय्याम
गुलाब का अतर लगाना बहुत मुबारक है। किसी काम को शुरू करने के लिए ये यहाँ बड़े मुबारक हैं, लेकिन किसी रिश्ते को तोड़ने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि कुछ तलखी, बहस, इख्तलाफात मंजर आम पे आते हुए दिख रहे हैं। इसलिए जितना हो सके ठहर ठहर के गुफ्तगू करें और पानी ज़्यादा पिएं। इनका भी नियाम करके सफ़ेद चीज़ का, मछली का, उसमें दे सकते हैं। जब जब चांद ग्रहण आता है या सूरज ग्रहण आता है तो अकीक पत्थर पे खास इसमें आज़म किए जाते हैं। जो भी इंसान चांद ग्रहण के वक्त इसमें आज़म दमशुदा पढ़ा हुआ अकीक पहन के जहाँ जहाँ कदम उठाता है तो लोगों की तवज्जह का मरकज बनता है। फतेह हो कामयाबी के नए नए रास्ते उसके कदमों से बिछते हैं। आज, कल और परसों अगर आप मेहरबान स्टोन से कोई भी पत्थर लेंगे तो उसके साथ ये 3 तबरुकात गिफ्ट दिए जाएंगे। पहला, लोहे कमर, जो इंसान के लिए मोहब्बत के रास्ते हमवार करता है, जिंदगी में सुकून लाता है और जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको मुतवज्जह करवाता है, गिफ्ट दिया जाएगा। साथ साथ लोहे शम्स, जो दौलत के हवाले से इंसान को मजबूत बनाता है, कामयाबी के रास्ते हमवार करता है, गिफ्ट दिया जाएगा। और उसके साथ नजर हसद से बचने वाला सुरमा, जिसका टीका इंसान अपने जिस्म पे लगा के कहीं भी जाएगा तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसको छू नहीं पाएगी, गिफ्ट दिया जाएगा। तो अभी फोन उठाएं, मेहरबान स्टोन्स के नंबर पे कॉल करें और किसी भी पत्थर के साथ ये 3 तबरुकात गिफ्ट हासिल करें। सैजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता मुश्तरी के योग के साथ शुरू हुआ है। अगर रोज़ सुबह के आगाज़ में आब ज़मज़म से अल्लाह का नाम अपनी पेशानी पे लिखते हैं, चांदी हाथ में पहनते हैं, सफ़ेद लिबास पहनते हैं, तो लोग आपकी तरफ मुतवज्जा भी होंगे, आपकी बात को तस्लीम भी करेंगे। काम आसान होते हुए, रिश्ते आसान होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपके गुस्से की वजह से कुछ चीज़ें बिगड़ सकती हैं। जल्दबाजी से बचें, गुस्से से बचें, तल्ख कलामी से बचें, डार्क रस्ते कम पहनें। रेगुलरली अगर पानी में कुछ देर अपने पाँव डालते हैं तो बेहतर है। हफ्ते में 1 मरतबा मुल्तानी मिट्टी अपने पैरों में लगाते हैं तो बहुत मुबारक है। फिर जैसे ही खुश्क हो जाए तो गुलाब के पानी से पाँव धो लें। इनसे जितनी भी नेगेटिविटी पिछले साल की है वो ख़त्म हो जाएगी। 2 खुशियाँ आपके दरवाजे पे ठहरी हैं जो आपकी मीठी ज़बान से हासिल होंगी। इनका भी नियाम करके सफ़ेद चीज़ का, मछली का, इसमें ज़्यादा पता दे सकते हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न के लिए ये हफ्ता तहकीक का हफ्ता है, इल्म का हफ्ता है। इसलिए किताबों को पढ़ना, डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखना, उन लोगों से जुस्तजू करना, उन लोगों से मुलाकात करना जिनसे इल्म में इजाफा होता है, बहुत मुबारक है। गुस्से और चिड़चिड़ेपन से दूर रहें, हाजिर दिमागी को कायम रखें, जितना हो सके पानी ज़्यादा पिएं। इस हफ्ते आपको कोई खुशी, कोई साथी, कोई दोस्त ऐसा मिलेगा जिससे आपकी ज़िंदगी में अमन और सुकून के रास्ते हमवार होंगे। ताज़ा हवा में कुछ देर बैठना और पानी ज़्यादा पीना, शाम के वॉक पे जाना आपको बड़ा फ़ायदा दिलाएगा। तली हुई चीज़ें, मसनूई मिठास इस हफ्ते कम खाते हैं तो बेहतर है। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये हफ्ता बड़ा मुबारक है। इनका भी नियाम का सफ़ेद चीज़ का, मछली का, उसमें ज़्यादा पता दे सकते हैं। वही 21 सालों की ज़िंदगी में कोई साथी, कोई दोस्त आता हुआ दिख रहा है, कोई ऐसा रास्ता हमवार होगा जिनसे आपको कोई खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा। इसलिए जितना हो सके हाजिर दिमागी पे तवज्जो दें, फिजिकल एक्टिविटीज़ में खुद को मसरूफ़ करें। सुबह के वक्त फल खाते हैं, शाम के पपीता या नींबू पानी पीते हैं तो बहुत मुबारक है। तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें इस हफ्ते कम खाते हैं तो बहुत मुबारक है। याद रहे, आपकी हाजिर दिमागी, आपकी मीठी ज़बान आपको इल्म भी दिलाएगी, आपके कामों में आसानियों के रास्ते भी हमवार कराएगी और जो मौजूदा चीज़ें उलझ रही हैं उसको सुलझाएगी भी। लेकिन स्क्रीन को वक्त ज़्यादा देंगी, सुस्त बैठे रहेंगे, एक जगह सारा दिन गुजार देंगे बैठ बैठ के, तो वो आपके कामों में उलझन पैदा करेगा। इनका भी नियाम का सफ़ेद चीज़ का, मछली का, और इसमें आदम पत्थर क्यों दे सकते हैं। और पैसे वालों के लिए ये हफ्ता बड़ा अहम है क्योंकि मुश्तरी का योग आपके दरीचे में आया है। आप काम शुरू करें, मुल्तानी मिट्टी अपने पैरों में ज़रूर लगाएं हफ्ते में 1 मरतबा, और फिर गुलाब के पानी से अपने पाँव धो लें। जितनी भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। गुलाब का अतर सुबह के आगाज़ में लगाते हैं तो बहुत मुबारक है। सुरमे से कान के पीछे काला टीका लगाते हैं तो बहुत मुबारक है। काम को शुरू करना, हुनर को सीखना, इल्म को बढ़ाना, उन लोगों से मिलना जिनसे इल्म बढ़ता है, बहुत मुबारक है। बस तलखी से, गुस्से से, जज्बाती फैसलों से, जल्दबाजी वाले फैसलों से बचा करें। याद रहे, आपकी कामयाबी मीठी ज़बान और हाजिर दिमागी में है। तलखी, गुस्से और जल्दबाजी वाले फैसलों से बचने की कोशिश करेंगे तो दुनिया आपके कदमों में आएगी। अभी किसी अपने से झगड़ा भी होता हुआ दिख रहा है, कोई कुछ कह देता है, उसको इग्नोर करें और काम पे तवज्जो दें। इनका भी नियाम का सफ़ेद चीज़ का, मछली का, उसमें आदम पत्थर क्यों दे सकते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता है पंजतन पाक का, जो जो मैं देख रहे हैं सबकी दुआ अपने दरबार में कबूल और मकबूल फरमा। अल्लाह